Good morning, students. Now we are on lecture 7. Quantum mechanical model के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे. And we had started quantum mechanical model of atom also, but there are many points related with that atom is also important. That's why I again named this lecture as quantum mechanical model of an atom, right? But most part of the quantum mechanical model of an atom we had discussed in last lecture also, right? Here we are, shapes of atomic orbital. So to define the shapes of atomic orbitals, different orbitals plots between wave function and the r, the distance from the nucleus, are used. Wave function equation, that is the solution of Schrodinger equation, and r the distance from the nucleus, right? Where the value of wave function or probability density is higher, it means there is probability for electron is maximum, and where it is 0, it means there is no electron, right? So the value where the point at which psi or psi square is 0 is known as node, right? With respect to r, on the x-axis, जहाँ पर भी psi और psi square की वैल्यू 0 है उसे अपन कह देते हैं क्या, नोड, राइट? ऐसे ही एक और होता है एंगुलर नोड और नोडल प्लेन. दिस इज एक्चुअली रेडियल नोड. विच चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस इज नोन रेडियल नोड, एंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज रेडियल नोड. जहाँ पर 0 वैल्यू होती है, दिस इज रेडियल नोड. And one more node is important, which is called angular node or nodal plane. Angular node or nodal plane is almost same, and it is equal to L. It is actually the node according to angle, 0 electron probability with an angle, right? Or plane, a perpendicular plane at which the density probability of electron is 0 is called nodal plane. Now both are the same condition. We will discuss about it later also. So these plots are describe where the electron density is maximum, where the electron density is minimum, how the electron density vary as we move from the nucleus. I shared here with 1s maximum electron density toward the nucleus. That's why it started from here only. S के लिए psi और psi square के जितने भी graphs होंगे, you start from here maximum always for S only. Remember. अदर के लिए 0 से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज 1s जो होता है न्यूक्लियस के पास ही होता है, फिर 2s एस हमेशा न्यूक्लियस के पास होता है, इसलिए वहाँ से स्टार्ट होता है. मैक्सिमम होता है उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास. सो एस स्टार्टेड फ्रॉम हेयर ओनली. फॉर अदर्स यू जस्ट नीड टू नो द नोड. सो नंबर ऑफ रेडियल नोड यू कैन कैलकुलेट n minus l minus 1, and number of angular node you can calculate, that is l, right? So if we have number of radial node, तो उतने बार ही ये जो ग्राफ है इस पॉइंट या जो ये लाइन है एक्स एक्सिस को ये टच करेगा. यू कैन सी फॉर 2s, यू कैन सी दिस इज 2 माइनस s के लिए l की वैल्यू 0 ही होती है, तो 2 माइनस 0 माइनस 1, सो इट इज 1. सो दिस ग्राफ टच वंस दिस एक्सिस. ये दिख रहा है टच करते हुए, लेकिन जस्ट नीचे टच नहीं करेगा, राइट? सो अगर हमें पता करना है कि विच वन इज 2s ग्राफ, सो यू कैन सी कि जिसमें एक नोड होगा दैट वुड बी 2s ग्राफ, और स्टार्टेड s है तो स्टार्टेड फ्रॉम द मैक्सिमम, मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, राइट? इन योर बुक गिवन इट इज ओनली, बट आई एम शेयरिंग ग्राफ ऑफ ईच एंड पॉसिबल ऑर्बिट, एंड यू कैन ऑल्सो बी एबल टू ड्रॉ दोज ग्राफ. अगर आप इस पोर्शन को ध्यान से देखेंगे तो बड़े आसानी से आप सारे ग्राफ बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we have to prepare 2p ग्राफ. 2p के ग्राफ कैसे बनेगा अगर हमें वो प्रिपेयर करना है? सो लेट्स सी 2p, राइट? सो 2p का ग्राफ कैसे बनेगा? सो नोड, रेडियल नोड कितना होगा भाई 2p के लिए? रेडियल नोड विल बी n minus l minus 1. सो n विल बी फॉर 2p 2, okay, this number will give n, and p is l के लिए p के लिए l की वैल्यू यू कैन सी लास्ट लेक्चर, l के लिए आई हैव गिवन 0, ठीक है? s के दैट l की वैल्यूज और यहाँ पर सब सेल, l की वैल्यू 0 तो सब सेल s, राइट? l की वैल्यू
जो है वो दैट इज 1, सो सबसेल P, L की वैल्यू 2, सो सबसेल D, एंड L की वैल्यू 3, सो सबसेल F, P सबसेल इज देयर, L की वैल्यू 1, so it's 2 minus 0, so that will be equal to 2 minus 0, 2 minus L की वैल्यू 1 ना, okay, so L1 and minus 1, so that will be 0. Okay, it means no radial node we could find in the graph of 2p when it draw with psi and r. So this graph will start from here, we will not consider it as a node because started from here only, and it goes through like this, and this is, so this is for 2p, and for psi square it is, okay, what is the difference between the graph of psi and psi square? It is only that in case of 2s you can see one node is there, in 1s no node is there, थोड़ा सा स्लोप साई स्क्वायर का ज़्यादा होता है, सेकेंड इज साई स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव, तो यू कैन सी ये नोड यहाँ तक जाएगा, उसके बाद वापस ये शुरू हो जाएगा, तो यही डिफरेंस होता है दोनों में कि साई स्क्वायर में जो वैल्यू है वो नेवर बी नेगेटिव, तो यहाँ पर भी साई स्क्वायर और आर के लिए इस केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, साई स्क्वायर एंड आर के लिए भी ग्राफ ऐसा ही होगा और इस तरीके से. तो रिमेंबर 2p for 2p for 3s for 2p and then for 3d, right, and then for 4f, इनके लिए ग्राफ बिल्कुल सेम होगा क्योंकि सब में आप देखेंगे नोड जीरो, रेडियल नोड 0 आएगा, एंड 2p के साथ में हमने क्या कहा 1s मैक्सिमा से शुरू होता है, इसलिए हम वहां काउंट नहीं कर सकते इसे, अदरवाइज बाकी कंडीशन सेम होती है. नाउ लेट्स सी फॉर ग्राफ 3p के लिए क्या ग्राफ होगा. So you can see radial node we can calculate for 3p. Radial node कितने हो जाएंगे 3p के लिए? So 3 minus p is there, so 1 and minus 1, so it will be 1 radial node is there. So अगर हम 3p के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं साई और r के लिए, so ग्राफ will be, देखिएगा साई और r के लिए ग्राफ will start from here, go to maximum, minimum and the negative, and there, that's it, one node is there. And for psi, this is r, okay, and for psi square it is, जैसे 2s में उसके हुआ था पॉजिटिव वैल्यू ही रही थी, वैसा ही बस मैक्सिमा 2s तो मैक्सिमा से स्टार्ट होता है, just like this and like this and this is, so one node is there, it is touching, right, so one node is there. ये बात अलग है कि आगे जैसे जैसे जाते जाएंगे पीक जो है वो छोटा होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर कैसी होती जाएगी, मैक्सिमम जो है वो कम होता जाएगा, राइट. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट है, दिस इज फॉर 2p. अगर 3d के लिए बनाएंगे तो कैसा होगा, ऑलमोस्ट यही रहेगा, बस पीक थोड़ा आगे बढ़ जाएगा. फिर 4f के लिए बनाएंगे ऑलमोस्ट यही रहेगा, बट पीक थोड़ा आगे बढ़ जाएगा. सो दिस इज फॉर 2p, दिस इज फॉर 3d and this is for 4f. Similar to in this case also, 3p then 4d then 5f, सेम ग्राफ होंगे, बस अंतर क्या होगा, आपने 3p के लिए बनाया, 4d के लिए बनाएंगे तो एक और आगे मिल जाएगा, एक और इसी तरह से थोड़ा सा पीक जो होते हैं वो आगे होते हैं, और बाकी कोई फर्क नहीं होता है, एक ही जैसे देखने को मिलते हैं, बट पीक डिफरेंट होते हैं. जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, पीक थोड़ा आगे की तरफ चलते जाता है. इज इट ओके? नाउ लेट्स हम 4p के लिए ग्राफ बनाए, तो 4p के लिए ग्राफ क्या हो जाएगा भाई, सो रेडियल नोड कितने हो जाएंगे, यू कैन सी रेडियल नोड इज दैट n इज 4 माइनस l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dp के लिए 1 ही होती है, -1, तो रेडियल नोड इज 2. सो साई और r के बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो साई और r के बीच में हमारा ग्राफ कैसा होगा भाई, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड 2 रेडियल नोड इज देयर, राइट. सो 1 रेडियल नोड इज देयर, 2 radial node is there, and that's it, right. So this is 2 radial node is there na, so 1 radial node is this and the second radial node. No, the psi के लिए कैसा होगा, psi के लिए नहीं, this is actually for psi square, right. psi के लिए कैसा ग्राफ हो जाएगा, नेगेटिव में जाएगा. So we'll start from here, go to negative ones, come to positive again, and that's it, right. So 2 radial node is there and the value is negative, which is possible for psi only.
साई एन आर, पॉजिटिव होगा तो साई स्क्वायर। कैन यू सी? आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। रेडियल नोड देख लीजिए, बनाते जाइए। एस के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, एस विल स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम ऑलवेज। सो इस बेस पे हमें पता चलता है व्हाट दिस ग्राफ सजेस्ट अस कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, जैसे 1s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, फिर जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है। इनिशियली आपने देखा जैसे जैसे दूर गए कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई। तो ये स्टार्ट से आपको पूरा ग्राफ 2s के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्राफ 1s खत्म हो गया, फिर 2s शुरू हो गया, फिर 2s खत्म हो जाएगा, 3s शुरू हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये पीक्स आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स पता है, रेडियल नोट्स पता है, तो आप सारे ग्राफ्स बना सकते हैं फॉर साई विद रिस्पेक्ट टू आर एंड फॉर साई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर, राइट। और हम कैलकुलेट कर सकते हैं उनके जो भी ग्राफ्स हैं, जो हमें ये बताते हैं, इन ग्राफ साई और आर की वैल्यूज से हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियस के साथ साथ जैसे जैसे न्यूक्लियस से जैसे हम दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे वेरी कर रही होती है। न्यूक्लियस का जो सबशेल्स होते हैं उनके साइज के लिए या जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर की गई है। एक जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम और चार्ज क्लाउड डायग्राम भी हम इन्हें कहते हैं। बाउंड्री सरफेस डायग्राम और चार्ज क्लाउड डायग्राम। पहला जो डायग्राम है वो चार्ज क्लाउड डायग्राम है। ये हमें बता रहा है कि न्यूक्लियस, जैसे एकदम न्यूक्लियस देखिए सेंटर में दिख ही नहीं रहा, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। जब 2s की बात करते हैं तो न्यूक्लियस दिख रहा है, उसके थोड़ा दूर पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। एंड दीज आर बाउंड्री सरफेस डायग्राम, जो कहीं ना कहीं बाउंड्री लिए हुए होते हैं। ये 1s के लिए हमें बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर 1s एंड 2s, दे आर डिस्क्राइबिंग दैट दिस इज एज सबसेल इज स्फेरिकल इन शेप. It is spherical in shape. It means its probability of electron around the nucleus is equal in these subshells. स्फेरिकल शेप होने का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो चारों तरफ बराबर है. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्फेरिकल शेप. दोनों ही, दीज आर चार्ज क्लाउड डायग्राम एंड दीज आर बाउंड्री सरफेस डायग्राम, और दोनों एक ही चीज डिफाइन करते हैं. 100%, एक बात हमेशा याद रखिएगा, 100% प्रोबेबिलिटी कभी नहीं बताई जा सकती. यही फर्क है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में. 100%, क्योंकि आप किसी भी एटम के बारे में एग्जैक्ट श्योर नहीं, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में श्योर नहीं हो सकते, राइट. बट एस ऑर्बिटल के लिए आप ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम टाइम न्यूक्लियस के चारों तरफ जो एस सब शेल होते हैं उनका शेप स्फेरिकल होता है. तो स्फेरिकल शेप होने का मतलब है, मैंने बताया था शेप, आपको कल आपको याद होगा क्वांटम नंबर जब मैंने शेयर किए थे, शेप का मतलब सीधा सा एक ही चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरीके की है. तो स्फेरिकल शेप होने का मतलब है न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल है, स्फेरिकली सिमेट्रिक है. एंड यू कैन सी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस से दूर होती जाएगी, कम होती जाएगी. ऑब्वियस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है साइज बढ़ते जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कम होते जाएगा. यू कैन सी इन p ऑर्बिटल्स ऑल्सो, बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ p ऑर्बिटल. दीज आर इन दिस p ऑर्बिटल यू कैन सी ऑन द बोथ साइड ऑफ द ओरिजिन ऑन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज देयर, बट बीच में एक लाइन आप देख पा रहे होंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी. न्यूक्लियस के दोनों तरफ एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. आपको याद होगा मैंने कहा था, मैं बताऊंगा px py pz क्या होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यू कैन सी एक्स एक्सिस पर दोनों तरफ, यानी हम कहें एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में अवेलेबल है. जैसे एक्स एक्सिस पर है तो दो प्लेन में हम कह सकते हैं एक्स जेड, इट इज पी जेड. तो वी कैन से कि एक्स जेड में हो सकता है और वाई जेड में हो सकता है. एक एक्सेस हमने अगर इसे पी जेड मान लिया तो एक्स जेड और वाई जेड में होगा. लेकिन इनके अलावा एक प्लेन ऐसा होगा जो एक्स वाई प्लेन होगा, जो इनके परपेंडिकुलर होगा, जहां जेड इंक्लूडेड नहीं होगा. वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इसी तरह से आप एक एक्सेस जहां पर इसे रखा है आप उसे मान लीजिए क्या, वाई मान लीजिए, ठीक है. तो उस केस में दो एक्सेस मिल जाएंगे. कौन सा मिल जाएगा, वाई जेड और वाई एक्स, ठीक है. तो एक्स जेड एक परपेंडिकुलर ऐसा प्लेन बनेगा जिसमें नहीं होगा, ठीक है. और ऐसे ही इसमें
तो जिस एक्सेस पर आपने रखा हुआ है उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये आपने जैसे z में रखा है, ये आपने x में रखा था, ठीक है, ये आपने y में रखा था। सो दिस इज इफ इट इज इन x सो इट विल बी px, if it is in y it will be y and py, and if it is z it will be z। थोड़ा सा गड़बड़ है लिखने में, ये py ये ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। दिस इज व्हाट z एंड दिस इज व्हाट x। तो जिस एक्सेस में रखा होगा उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाएगा। और 3 है इसलिए इसकी वैल्यूज भी वी नो, m की वैल्यू जितनी होती है उतने ही और सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स 3 अलग अलग, सब शेल इज p but these are 3 orbitals of subshell x, px, py and pz। एंड आप देख सकते हैं डम्बेल शेप, तो ये जो शेप है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के दोनों तरफ स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और बीच में एक ऐसा जोन होता है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, उसे नोडल प्लेन या एंगुलर नोड कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं L की वैल्यू इसके लिए 1 होती है, और इसमें सब में एक ऐसा प्लेन जरूर आपको मिलेगा जहाँ डेंसिटी जो है वो 0 होगी। अगर ये x एक्सेस में है तो yz एक ऐसा प्लेन होगा, अगर ये y एक्सेस में है तो xz ऐसा प्लेन होगा, और अगर ये z एक्सेस में है तो xy एक ऐसा प्लेन होगा जो नोडल प्लेन कहलाएगा। जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, अगेन द सेम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कम होते जाएगा, राइट। इन केस ऑफ d ऑर्बिटल्स अगेन यू कैन सी d ऑर्बिटल्स में भी ऑलमोस्ट सेम होता है, बस एक ही जगह थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है इन केस ऑफ d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स में भी सब में यू कैन सी, आई थिंक इट इज, अगर आपको क्लियर नहीं हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ तो शायद आपको समझ में आएगा और क्लियर होगा। यू कैन सी डबल डम्बेल लाइक स्ट्रक्चर। मैं इसमें शायद मुझे लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, वैसे तो आप स्ट्रक्चर देख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं थोड़ा सा और शार्प करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको और क्लियर हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो। बट यू कैन सी डबल डम्बेल लाइक स्ट्रक्चर, एक डंबल। अब इसमें क्या होता है, 3 ऐसे होते हैं जो एक्सेस पर होते हैं, 3 एक्सेस होते हैं जो एक्सेस के बीच में होते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सेस, दिस इज बिटवीन डिफरेंट एक्सेस, ठीक है। एंड 2 ऐसे होते हैं जो एक्सेस पर होते हैं, यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर बाकी सब में नोडल प्लेन जो है वो 2 रहते हैं, बिकॉज एल इज इक्वल टू नोडल होता है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन इसमें जो है वो एक सर्कुलर रिंग देखने को मिलती है, और इसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। इसमें एक नोडल कोन जरूर बनता है। यू कैन सी, अगर हम यहाँ से इसे कोन की तरह देखें तो एक कोन में कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है रिंग के बीच में, लेकिन कोई नोडल प्लेन नहीं बनता है। आई एम शेयरिंग द स्ट्रक्चर क्योंकि वहाँ शायद आपको और क्लियर नहीं हो रहा हो, तो मैं इसके स्ट्रक्चर्स डी सबशेल्स के यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो शायद आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ समझ में आएगा कि डी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। -2, -1, 0, +1, +2, 5 वैल्यूज होती है ना m के लिए, डी सबसेल्स के लिए m की वैल्यूज 5 होती हैं, तो वो ऑर्बिटल्स को ही डिफाइन करती है। ओके, नाउ लेट्स सी। तो इसमें क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो एक्सियल ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। एक्सियल डी ऑर्बिटल्स मतलब 2 ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जो एक्सियल डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। 2 ऑर्बिटल्स ये एक्सेस पर मिलते हैं, यानी इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है एक्सेस पर होती है। एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा होता है डी जेड स्क्वायर। अगर मैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बनाऊं तो ये मेरे लिए x हो जाएगा और ये मेरे लिए y हो जाएगा। तीसरा एक्सेस जो मैंने नहीं बनाया वो z हो जाएगा, राइट। और इट लुक लाइक दिस, ऐसा, मतलब दोनों तरफ बराबर होंगे, सारे जो हैं वो सब बराबर होंगे। ये थोड़ा छोटे बड़े बने हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के दोनों तरफ होगी और एक्सेस पर होगी, और ऊपर एक्स एक्सेस पर भी और वाई एक्सेस पर भी, लाइक दिस। और बीच में, अब जैसे मैं इसको और बेहतर बनाऊँ तो शायद आप डायरेक्ट एंगुलर नोड भी कंसीडर कर लोगे। इट विल स्टार्टेड फ्रॉम हियर, इट विल स्टार्टेड फ्रॉम हियर, इट विल स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। तो एक जो ऐसा प्लेन और एक ऐसा प्लेन, जो 2 प्लेन जो बनते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच बीच में एकदम 0 होती है, तो नोडल एंगुलर नोड 2 हो जाते हैं। रेडियल नोड तो क्लियर है, n-1, अब n चाहिए तो सबके लिए अलग अलग होता है। ऐसे ही z स्क्वायर होता है। z स्क्वायर सबसे डिफरेंट होता है, इसे मैं z एक्सेस लूँगा तब ये बनाऊँगा, और z स्क्वायर सबसे डिफरेंट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जो रिंग होता है और एक्स वाई एक्सिस में होता है, ये जो रिंग होता है इन एक्स वाई एक्सिस, तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन, जेड में तो है ही, तो कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो नहीं होती। एक कोन जरूर बनता है, बिल्कुल जहाँ रिंग होता है उसी एंड पर एक कोन जरूर बनता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो सकती है। इसलिए इसमें नोडल कोन देखने को मिलता है, नोडल प्लेन देखने को नहीं मिलता। केवल यही एक ऐसा है एसपीडीएफ में, एसपीडी में। एफ की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एक हायर स्टडीज का पॉइंट हो जाता है। सो दीज आर टू। नाउ जो बाकी तीन होते हैं वो नॉन एक्सियल होते हैं, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर नहीं होती, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। डी की अगर हम बात करें तो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में क्या होता है, यू कैन सी, अच्छे से आप बना सकते हैं, लोब सारे बराबर होने चाहिए। लोब देखिए मैं थोड़े बड़े इसलिए बना रहा हूँ आप समझ पाए से। तो ये और प्लेन जो होता है नोडल प्लेन हो जाता है, और बाकी इसे हमने x माना, इसे y, तो इसीलिए इसे कहते हैं dxy। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें तो इस एग्जाम्पल में और हम अच्छे तरीके से शायद बना पाए। मैं थोड़ा ब्रश चेंज करता हूँ, शायद और बेहतर तरीके से बन पाए। ओके, सो इन दिस केस मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एंड इट इज़ लाइक दिस। ओके, सो इसे अगर मैंने लेट इट इज x and it is z, so it will be dxz। and similarly अगर हम एक और इसी तरीके से बना सकते हैं, बस एक्सिस का डिफरेंट होगा, बाकी सारे वैसे ही होंगे। तो इसमें अगर वी हैव टेकन दिस y and this z, so this will be dyz, राइट। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यू कैन सी कि इसको भी थोड़ा अच्छे से और बनाने की कोशिश करता हूँ, शायद और अच्छा लगे तो आपको। ये एक्सिस पर होते हैं, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये जो है वो एक ही एक्सिस पर होता है, दैट इज z एक्सिस, डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पर एक ऐसी रिंग भी होती है। सो दीज आर 5 ऑर्बिटल्स जो डी सब सेल में होते हैं। ऐसे एफ सब सेल में, तो इनका जो ये जो शेप बन रहा है, ये जो डम्बल बन रहा है, ये लोब बन रहा है, दिस डिफाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोबेबिलिटी, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम ग्राफ से देखते हैं, ये डिफाइन करता है एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इज इट क्लियर टू यू नाउ? सो दिस इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ डी ऑर्बिटल्स also. I think it is very much clear to you. Now here we are on energies of orbitals. Now it is very important. One important thing is orbitals having same energy are known as degenerate orbitals. और जिनकी एनर्जी सेम नहीं होती वो नॉन डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। एक खास बात हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन और अदर एटम्स, इनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी में हमेशा डिफरेंस होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अदर एटम्स में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसीलिए एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वहां पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का कोई इश्यू नहीं होगा। मैं यहां से थोड़ा आपको शेयर करना चाहता हूं। लेट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और बाकी कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स में और कहीं इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कीजिए, जैसे हाइड्रोजन में होता है एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, दिस इज इलेक्ट्रॉन, दिस इज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में केवल अट्रैक्शन फोर्स होगा, कुछ और नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि मैंने वो स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो मैं अलग से आपसे शेयर करता हूँ। I'm talking about this condition only. What condition? This condition. This is nucleus, this is electron. This is the case of hydrogen. तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, नथिंग एल्स। तो हर ऑर्बिट में कोई भी एनर्जी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हमेशा ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन शेल्स होते हैं ना, शेल्स, उनमें जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उन सब की एनर्जी सेम होती है। यानी आप कहेंगे 1s की एनर्जी सेम है,
केवल n की वैल्यू चेंज होने से एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है और किसी कारण से। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिफाइन द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयन। अब यहाँ पर 2s का एक ऑर्बिटल और p के 3 px py pz 4 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। यहाँ पर s के एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल और d के 5 यानी 9 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, क्योंकि किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन नहीं है और इसीलिए एनर्जी लेवल सेम हो जाते हैं। लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जब होता है तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होता है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस इज न्यूक्लियस, इट इज अट्रैक्टिंग ऑल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी हैं इनके बारे में नहीं दिखाया है, ये भी होंगे, तो जितने भी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन साथ में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपल भी करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन भी होता है और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण से अलग अलग एनर्जी लेवल्स डिसाइड होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, जो हमें हमेशा, तो यू कैन सी द वन इंपॉर्टेंट थिंग कि अलग अलग इंटरेक्शन के कारण से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण से आप देख सकते हैं अलग अलग एनर्जी लेवल्स डिसाइड हो सकते हैं, और जिसे मैंने n+l से कहा था, आप n+l से एनर्जी लेवल्स को देख सकते हैं। n+l की वैल्यू मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है n+l, n+l की वैल्यू जिसके लिए कम होगी, जिस सबशेल के लिए, उसकी एनर्जी कम होगी, और n+l के लिए की वैल्यू जिस सबशेल के लिए ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इफ इट इज हैपन्स कि दो सबशेल्स हैं और उनके n+l की वैल्यू सेम है, तो जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा कंसीडर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 4s और 3p को चेक करें, आप चेक कर सकते हैं 4s एंड 3p, ऐसे वैसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स बाद में मिलेंगे भी, 4s और 3p को चेक करिए तो n+l अगर हम देखें तो n की वैल्यू 4s के लिए कितनी होगी 4 और 3p के लिए वो 3 और l की वैल्यू 4s, तो s की वैल्यू s के लिए l की वैल्यू 0 होती है और p के लिए l की वैल्यू 1, यानी दोनों का टोटल जो आ रहा है वो 4 आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में n के लिए 4 की वैल्यू, n के लिए और या 4s के लिए n की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में हम कंसीडर करेंगे कि 4s जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा हो या 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी और तो 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी और 3p की एनर्जी कम होगी। तो इस तरीके से हम एनर्जी ऑर्बिटल्स की बता सकते हैं। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को लेकर एक और ख़ास पॉइंट आता है जो हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये कि जो ये इलेक्ट्रॉन वी कैन सी इन द फर्स्ट केस, हमने देखा जितना भी न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है उसे ही न्यूक्लियर, जितने भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उसे ही न्यूक्लियर चार्ज कंसीडर किया जाता है, जिसे Z के थ्रू मेजर किया था, जो एटॉमिक नंबर भी कहलाता है, इसे ही न्यूक्लियर चार्ज माना जाता है। ओके, क्या माना जाता है? इसे न्यूक्लियर चार्ज माना जाता है। अब आगे क्या? ठीक है, आगे ये कि जब दूसरी कंडीशन आ गई, जैसे हमने अभी ये दूसरे केस में देखा भी, और मैं यहाँ ड्रॉ भी कर दे रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ तो कोई इशू नहीं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और Z ही लगेगा इनके ऊपर। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स की बात करूं तो ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, ये भी न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, तो ये हो गया क्या? Z। लेकिन साथ में जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इसे रिपल भी तो करेंगे, नहीं करेंगे? इसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इसे रिपल भी तो करेंगे बाहर की तरफ, रिपल्सन भी तो लगेगा, नहीं लगेगा? बोलो, रिपल्सन भी लगेगा। ओके, सो इसका मतलब हो गया कि जो टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो यहाँ पूरा Z था, यहाँ पर कुछ और होगा इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं? और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू होता है जो भी न्यूक्लियर चार्ज है एंड दिस इफेक्ट the repulsion of outer shell electrons by inner lying electrons is known as
शील्डिंग इफेक्ट, और इसे कहते हैं शील्डिंग कांस्टेंट। शील्डिंग कांस्टेंट। तो यहां पर ये चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो रिपल करते हैं, दिस इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। और इस शील्डिंग के कारण से इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज जो कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे n का नंबर बढ़ता है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, न्यूक्लियस से आप दूर जाते हैं, शील्डिंग बढ़ते जाता है। हमेशा याद रखिएगा। लेकिन एक ही शेल में जब हम बात कर रहे होते हैं तो न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन भी एस सब शेल पे होता है, और एस सब शेल क्योंकि उनके चारों तरफ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो शील्डिंग भी सबसे ज्यादा करते हैं। यानी अगर आप एक ही शेल की बात कर रहे हैं तो शील्डिंग जो है वो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो SPDF ये होता है। एस ऑर्बिटल शील्ड भी ज़्यादा करते हैं, शील्डिंग फील भी ज़्यादा करते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा फील करते हैं। अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी उनके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास भी होते हैं। I think it is very much clear to you what are the energy and what are the shielding effect or effective nuclear charge. Right? So this is all about this lecture. Thank you for today.